Hello student, good morning. I am Shatendra from Swami Harshavanand Degree College, Churk. Today we are studying a new theorem, that is Thevenin theorem and its equivalent circuit. ओके आज हम लोग थेवेनिन थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं और इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी देखेंगे. ठीक है, तो लेट स्टार्ट द थेवेनिन थ्योरम. Before starting the Thevenin theorems, we do some work. This work is this. First of all, subscribe my YouTube channel. If you a new student, then subscribe my YouTube channel and like, share in your friend circle. Okay, because I want to spread the education, this education to reach all the student in lockdown condition. Okay, then we start the Thevenin theorem. Here we start the Thevenin theorem. First of all, discuss the question. Question is this form: write down the Thevenin theorem and prove it. Okay. Statement. First of all, we see the statement. Statement of Thevenin theorem is that any linear active network consisting of independent or dependent voltage and current source and the network element can be replaced by equivalent circuit having voltage source in series with resistance. Okay, this is the statement. It means यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस थ्योरम में कोई भी डिपेंडेंट सोर्स होगा एज लाइक वोल्टेज और करंट. ठीक है, और उस ब्रांच में डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस होंगे, उसको हमको रिप्लेस कर देना है वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इन दिस फॉर्म वी सी अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स V1, अ रेजिस्टेंस R1, R2, R3. ठीक है, इस टाइप का हमारा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है. दिस टाइप ऑफ सर्किट रिप्लेस्ड इन दिस फॉर्म बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम. हियर वी सी दैट दिस थ्योरम रिप्लेस वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ short circuit voltage source, that is VTH, and equivalent resistance RTH in series with voltage. ठीक है, हमको क्या करना है, इस टाइप के सर्किट को जो हमारा यहाँ पे दिखाया गया है, इस टाइप के सर्किट को कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोड कनेक्ट होंगे और रेजिस्टेंस होंगे. इसको हमको रिप्लेस कर देना है दिस टाइप ऑफ नेटवर्क में. ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं थेवेनिन थ्योरम. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम्स. हम एक सर्किट कंसीडर करेंगे. वी कंसीडर अ सर्किट that is this: a voltage source Vs and resistance R1, R2, R3 and load RL. First of all, we calculate the open voltage और VTH. इसी को हम लोग ओपन वोल्टेज कहते हैं या VTH कहते हैं. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे लोड को एज ए ओपन, या लोड को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. ठीक है, देन कैलकुलेट द
voltage across the load terminal, ठीक है, by using KVL, ठीक है, Kirchhoff voltage law. Here in this circuit load is open and then voltage across VOC or VTH, ठीक है, then this voltage calculated across the R3, ठीक है, then we apply the KVL in this loop, ठीक है, then VTH is equal to, here in this loop, current I into resistance R3, because we calculate the VTH across the R3, ठीक है, this, then put the value of I, that is I VS minus I into R1 minus R3 I equal to 0. Then I is equal to V divided by R1 plus R3 by using KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है. सिंपली हम लोग क्या किए हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के यहाँ से फाइंड कर लिए हैं I, ठीक है. देन पुट द वैल्यू ऑफ I, देन VOC is equal to VS divided by R1 plus R3 into R3. Okay, this is this form, ठीक है. We see the next step, step 2. In this step we find the R equivalent or RTH or R equivalent. To find the RTH, here the circuit voltage source as a short circuit and current source is open circuit, ठीक है. RTH कैलकुलेट करने के लिए हमारे नेटवर्क में अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और करेंट सोर्स है तो उसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, और लोड को रिमूव करके लोड के अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सी करेंगे, देखेंगे, ठीक है. देन वी कैलकुलेट द RTH बाय सिंपल वे, ठीक है. हियर RTH इक्वल टू R2 सीरीज विथ पैरेलल ऑफ R1 एंड R3. देखिए यहाँ से अगर हम लोग RTH कैलकुलेट कर रहे हैं तो R2, ठीक है, एंड R1 एंड R3 कैसे हैं, पैरेलल में, ठीक. ये पैरेलल किसके सीरीज में है, R2 के, ठीक है. देन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे RTH इक्वल टू R2 प्लस पैरेलल ऑफ R1 एंड R3. तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन R1 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R3. Okay, there will be no doubt, this is the simple, ठीक है. then we calculate the RTH in simple way, ठीक है. तो हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर लिए, VTH and RTH, and then step third we draw the equivalent circuit, that is VTH in series of RTH and connecting remaining part of the load. Okay, here see the equivalent circuit of the theorem. As per statement, the load current is determined by circuit shown above and equivalent Thevenin circuit is obtained by connecting the load.
जो हमारा लोड था एज इट इज़ उसको कनेक्ट करके जो हमारा VTH और RTH था उसको हम लोग सीरीज में करके इस टाइप का सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा VTH है, दिस इज द VTH एंड सीरीज ऑफ द RTH एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लोड। देन कैलकुलेट द करेंट ऑफ दिस लूप बाय यूजिंग द KVL। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा KVL का फार्मूला लगा के हम लोग लोड करेंट I फाइंड आउट कर लेंगे, IL फाइंड आउट कर लेंगे इस लूप में। तो देखिए सिंपल से हम लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, KVL देखिए बहुत सिंपल होता है, हम लोग एक सिंपल तरीका फॉलो करते हैं। देखिए ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स होगा इसमें हमारा माइनस प्लस ऑलरेडी रहेगा, बट हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से करंट एंटर करेगी तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव, फिर यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव। ठीक है, KVL में क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन क्लोज लूप इक्वल टू 0। ठीक है, जितने हमारे वोल्टेज होंगे इस कॉम्बिनेशन में, इस लूप में, उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट, 0 के इक्विवेलेंट करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं करंट। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो आगे का साइन क्या है, पॉजिटिव, दिस इज द VTH माइनस RTH इंटू IL। इस लूप में IL फ्लो हो रही है, हियर माइनस RL लोड रेजिस्टेंस इंटू IL, वही करंट, इक्वल टू 0। ठीक है, देन सॉल्व इट एंड फाइंड I इक्वल टू या IL इक्वल टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। This is the result of the equivalent circuit of the Thevenin theorem. Okay, no doubt. Then we calculate the IL. Okay, simple है। We summarize again. See here, step for solving the Thevenin theorem। जो हम लोग अभी जितने प्रोसेस किए हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं। इसी स्टेप से आप क्वेश्चन को बड़े आराम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हियर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL बाय द गिवन सर्किट। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल लोड को क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। देन स्टेप 2, रिप्लेस ऑल द इम्पीडेंस सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। जितने हमारे सोर्स थे उसको इंटरनल रेजिस्टेंस में रिप्लेस कर लिए हैं। देन स्टेप थर्ड, इफ सोर्स आर आइडियल देन शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड ओपन द करंट सोर्स। जैसा कि अभी हम लोग पीछे देखे भी हैं, वोल्टेज सोर्स था तो उसको क्या किए हैं, शॉर्ट कर लिए हैं, करंट सोर्स होता है तो उसको ओपन कर लेते हैं। एंड स्टेप 4, नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज RTH एट द लोड टर्मिनल नोन एज थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। ओके, एंड स्टेप 5, ड्रॉ द इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट by connecting the load resistance and calculate the load current across the equivalent circuit. So this is the final step. Okay, so here we finish the Thevenin theorems and last we see again. Thank you again। हम आप लोगों से फिर से कह रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, ये हर स्टूडेंट का हक है पढ़ना। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन इज़ आवर फंडामेंटल राइट। तो हर स्टूडेंट पढ़ें, तो इसमें आप लोगों की भागीदारी है।
ठीक है, इसको शेयर करना है, जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्किल, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, कहीं भी। ठीक है, तो हम लोग मिल के एक मिशन स्टार्ट किए हैं एजुकेशन का, उसको आप लोग मिल के, मेरे साथ मिल के इसको पूरा करना है। थैंक यू, धन्यवाद।